محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ آٹھواں حصہ ہجرت و غزوات اور قیام ریاست اسلامی، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ دسواں باب جنگ بدر کے بعد۔ مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ اور قرآنی حکم۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ مدینہ کی اسلامی حکومت نے قریش مکہ کے مقابلے میں پہلی لڑائی جیت لی تھی۔ اس لڑائی کے سلسلے میں نئے مسائل سامنے آئے اور اس کے بارے میں لوگوں کو قاعدے، ضابطے اور طور طریقے بتائے گئے۔ اس موقع پر یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جو لوگ مدینہ کے پہلے دارالسلام میں ہر طرف سے آ کر جمع ہو رہے تھے، ان کے ذہن بہت سے تمدنی معاملات میں ابھی ناپختہ تھے۔ جاہلیت کی قدیم روش، عادتوں میں، برتاوے میں جھلک آتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان رفقائے کار پر جو اسلام اور جاہلیت کے فرق کو بخوبی محسوس کرتے تھے، بڑی ذمہ داری تھی اسلام میں داخل ہونے والے پرجوش نوجوانوں کو احتیاط کے دائرے میں سنبھالے رکھنا بھی ایک کام تھا، اور پختہ عمر اشخاص کے اخلاقی اور ذہنی سانچوں کو بدلنا بھی ایک کام۔ اسلام ان کے لیے ایک علم اور جذبہ ضرور تھا، مگر وہ ابھی تک ایک عادت نہیں بنا تھا۔ بدر کی لڑائی کے فوراً بعد ہی اموال غنیمت کے سلسلے میں ایک بدمزگی سی پیدا ہو گئی۔ مال غنیمت کس کا حق اور کس کی ملک ہے، یہ ایک پیچیدہ قانونی مسئلہ تھا۔ اسلام سے پہلے ایام جاہلیت میں تو قاعدہ یہ تھا کہ دشمن کے فرار ہوتے ہی فتح مند سپاہی مال غنیمت پر ٹوٹ پڑتے، اور جو جس کے ہاتھ لگ جاتا تھا وہ اس کی ملکیت سمجھا جاتا تھا۔ مگر معاملہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا تھا۔ سرداران فوج، سپہ سالار، امرا اور بادشاہوں تک چھینا جھپٹی کا یہ سلسلہ برابر جاری رہتا تھا۔ جہاں کسی بلند مرتبہ آدمی کو پتہ چلتا کہ اس کے ماتحت کے پاس مال غنیمت میں کوئی خاص مال ہاتھ لگا ہے، تو وہ پہلے تو یہ توقع کرتا تھا اور یہ کوشش بھی کہ اس کا ماتحت وہ مال خاص بطور نذرانہ پیش کر دے، اور اگر وہ ایسا نہ کرتا تھا تو پھر اس سے زبردستی وہ پسندیدہ چیز چھین لی جاتی تھی۔ اس طریقے میں کئی ایک خرابیاں تھیں۔ اول تو یہی کہ یہ کوئی منصفانہ طریقہ نہیں تھا۔ اموال حسن خدمت، استحقاق اور اہلیت کا لحاظ کیے بغیر لوگوں کے قبضے میں چلے جاتے تھے۔ دوسرے، اکثر مال غنیمت کی چھینا جھپٹی میں خانہ جنگی برپا ہو جاتی تھی، اور یہ باہمی تنازع بعض اوقات فتح کو شکست میں تبدیل کر دیتا تھا۔ ایسی بھی مثالیں تھیں کہ لوگ دشمن کا تعاقب چھوڑ کر غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور دشمن نے الٹے پاؤں لوٹ کر حملہ کر دیا، اور ابھی جو گروہ فتح کے نعرے لگا رہا تھا
उसे हजीमत उठाकर फरार होना पड़ा। ये सारी कबाहतें इस बात की थीं कि लड़ने वाले माले गनीमत को लूट का माल समझते थे और जिसके हाथ जो लगता था वो उसका मालिक बन बैठता था। फिर ये लूटमार का तरीका इंतहाई वहशियाना था जो आला अखलाक से कोई मुताबिकत नहीं रखता था। बदर की लड़ाई में जिन लोगों ने जो कुछ माल गनीमत लूटा था, अरब के पुराने तरीके के मुताबिक वो अपने आप को उसका मालिक समझ बैठे थे। लेकिन एक दूसरा फरीक जिसने गनीमत की तरफ रुख करने के बजाय कुफ्फार का ताक़ुब किया था, वो माल गनीमत में बराबर का हिस्सा लेना चाहता था, इस दलील पर कि क्या अगर हम ताक़ुब ना करते तो मुमकिन है दुश्मन पलट कर हमला कर देता और तुम इस माल गनीमत को ना पा सकते। एक फरीक ये दावा कर रहा था कि गनीमत में उसका भी हिस्सा है क्योंकि वो रसूल अल्लाह की हिफाजत पर मुतय्यन था, जो सबसे अहम और बड़ी खिदमत थी। अगर रसूल अल्लाह की हिफाजत ना होती तो कामयाबी भी हासिल ना होती, फिर माल गनीमत का क्या सवाल रहता था। अभी तक इस्लाम में कवानीन जंग मुरत्तिब नहीं हो सके थे। माल गनीमत दरअसल किसकी मिल्क है, इसमें किस किस का हक तस्लीम किया जाएगा, इनकी तकसीम की क्या सूरत होगी, ये सब अहम कानूनी सवाल थे जिनका वाज़ेह और कतई जवाब इस्लामी जमात के जिम्मेदारों के पास नहीं था और लोगों में इस मसले पर तल्खी और तुरशी पैदा हो गई थी। आखिर अल्लाह के पास से मुक़द्दस फरिश्ता सूरह अनफाल की आयत लेकर आया जिसका आगाज इस जुमले से होता है, तुमसे इनफाल के बारे में पूछते हैं, ऐ मोहम्मद कहो ये इनफाल तो अल्लाह और उसके रसूल के हैं। बस तुम लोग अल्लाह से डरो और अपने आपस के ताल्लुकात दुरुस्त करो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम मोमिन हो। इस फिक्रे का आखिरी हिस्सा एक कसौटी है कि वो लोग जो अपने इस्लाम कबूल कर लेने का ऐलान कर चुके हैं वो किस पर ईमान लाए हैं, अल्लाह पर बहैसियत खालिक व मालिक, हाकिम और रब के उसके रसूल पर बहैसियत इस हस्ती के जिनके जरिए अल्लाह ने अपनी हिदायत नाफिज की और उसको अपनी मखलूक के तज़किये और तरबियत पर मामूर किया। अब अगर वो मोमिन हैं यानी अपने जानो माल को अल्लाह और उसके रसूल के सुपुर्द कर दिया है, तो फिर ये बाहमीन निज़ाह किस लिए? तुमने अल्लाह की राह में जहाद किया तो ये एक फरीज़ा था जो कबूल हक के बाद तुम पर आयद होता था। इस जहाद में जो कुछ अमवाल मिले वो अल्लाह की तरफ से दिया हुआ इनाम है और ये इनाम तमाम शुरकाए जंग में से सिर्फ उनका हक कैसे हो जाएगा जिनके हाथ में इस इनाम तक पहुंच गए। इनाम देने वाला भी इस फैसले का मजाज है कि वो किसे दिया जाए और किसे नहीं। हाँ, अगर तुम मोमिन नहीं हो और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत के लिए तैयार नहीं हो तो फिर जो चाहो करो, मगर फिर क्या तुम्हारा हशर उससे बदतर नहीं होगा जो शिकस्त खाकर भागने वालों का हुआ। सच्चे अहले ईमान तो वही लोग हैं जिनके दिल अल्लाह का जिक्र सुनकर लरस जाते हैं और जब अल्लाह की आयत उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। ऐसे ही लोग हकीकी मोमिन हैं। उनके लिए उनके रब के पास बड़े दर्जे हैं।
कसूरों से दरगुजर है और बेहतरीन रिस्क है। सूरह इनफाल में इन आयात के बाद जंग बदर के वाकयात पर तबसरा है और इन तमाम वाकयात को दोहरा कर ये बात वाज़े की गई कि जंग में जो कामयाबी तुमको हासिल हुई, ये गुमान न कर बैठो कि वो तुम्हारी अपनी कुव्वत और तदबीर का नतीजा थी। तुम तो किल्लत तादाद और बेसरो सामानी के सबब सहमे जा रहे थे। उनका हाल ये था कि गोया वो आंखों देखे मौत की तरफ हाके जा रहे हैं। तुम में से एक ग्रोह को तो काफिले के बजाय मैदान जंग की तरफ जाना बहुत नागवार गुजर रहा था। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के वादे का ऐलान फरमाया। याद करो वो मौका जबकि अल्लाह तुमसे वादा कर रहा था कि दोनों ग्रोहों में से एक तुम्हें मिल जाएगा। तुम चाहते थे कमजोर ग्रोह तिजारती काफिला तुम्हें मिले, मगर अल्लाह का इरादा ये था कि अपने इरशादात से हक को हक कर दिखाए और काफिरों की जड़ काट दे, ताकि हक हक होकर रहे और बातिल बातिल होकर रह जाए, ख्वाह मुजरिमों को ये कितना ही नागवार हो। इन आयात को सुनने वाले दिल ही दिल में एतराफ करने लगे कि आज हम गनीमत के लिए झगड़ा कर रहे हैं, हालांकि उस वक्त हम बदर की तरफ रुख करना ही नहीं चाहते थे। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही थे जिन्होंने हमको मामूली फायदे के बजाय इस अजीम शान कामयाबी की तरफ चलाया। इसके बाद की आयतों में एक एक करके वो कमक और मदद याद दिलाई गई जो लश्कर की रवानगी से जंग के इख्तिताम तक अल्लाह की तरफ से इस्लामी फौज को मिलती रही। यहाँ तक कि उसने 1000 फरिश्ते उतारे जिन्होंने मुसलमानों के दस्तो बाजू मजबूत कर दिए और दुश्मन को हरासा करके मैदान से भगा दिया। बस ये हकीकत है कि तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उनको कत्ल किया, और तूने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका। तो ये इसलिए था कि अल्लाह मोमिनों को एक बेहतरीन आजमाइश से कामयाबी के साथ गुजारे। यकीनन अल्लाह सुनने और जानने वाला है। जब ये सब अल्लाह ने किया तो फिर भला तुमको ये कैसे हक पहुंचता है कि ये अमवाल गनीमत जो अल्लाह ने इनाम के तौर पर दिए हैं उनको अपनी मिल्क समझने लगो और खुद ही ये फैसला करने बैठ जाओ कि ये किसका हक है और किसका नहीं। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और हुक्म सुनने के बाद उससे सरताबी ना करो। उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने कहा कि हमने सुना, हालांकि वो नहीं सुनते। यकीनन खुदा के नजदीक बदतरीन किस्म के जानवर वो बहरे गूंगे लोग हैं जो अकल से काम नहीं लेते। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला।